Okay, dear students, today our second chapter is continuously going on. That is polynomials, presented by me, your maths teacher. So, before we start anything new, let us have a quick recap whatever that we have studied till date. So, what we have studied: degree of polynomials, type of polynomials, standard form of a quadratic polynomial, zeros of a polynomial, geometrical representation of zeros of a polynomial, relationship between zeros and coefficient of polynomials. And this is the topic for today: find a quadratic polynomial if sum and zeros are known. So till date we have covered above topics, so let us have a quick recap so that we can move smoothly today. So the firstly I told you about degree of polynomial. So what is a degree of polynomial? Highest power of variable in the given polynomial is the degree of polynomial. Okay, किसी भी polynomial में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री कहलाती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट अस हैव फ्यू एग्जाम्पल्स. सो you are watching here that in the first example the highest degree is 4. Okay, highest power of variable is 4, so its degree is 4. In the second example, highest power of variable is 6, so its degree is 6. In the third example, the highest power of variable is 3, so its degree is also 3. Now move towards the next topic. Next topic was type of polynomials. So what we have studied in type of polynomials: on the basis of degree we can categorize few polynomials. कुछ polynomials हमारे सामने दी हुई हैं, वेरिएबल की डिग्री के बेस पर हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हाईएस्ट पावर 1 है. ओके, सेकेंड पार्ट में हाईएस्ट पावर आप देख रहे हैं 2 है, और थर्ड एग्जाम्पल में हाईएस्ट पावर हमारी 3 है. तो जिसमें हाईएस्ट पावर 1 है उसकी डिग्री 1 है, ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल. सच पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल. सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज डिग्री 2. सेकेंड पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो जिसकी डिग्री 2 होती है ऐसी पॉलिनोमियल कहलाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सच पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जिसमें डिग्री 3 होती है ऐसी पॉलिनोमियल कहलाती है क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, सो आई एम मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? Quickly just have a look. General form of a quadratic polynomial or standard form of a quadratic polynomial is known as ax square plus bx plus c, where abc क्या है? abc are real numbers and a should not be equal to 0. I have told you that if a is equal to 0 then this quadratic polynomial will vanish. और इसके अलावा a, b और ये c ये हैं क्या? a is coefficient of x square, b is coefficient of x, and c is the constant term. c can be any root 2, root 3, 2, 3, 4, 5, any constant term. Okay, now move towards further. What is the next topic हमने जो स्टडी किया था वो था zero of a polynomial. So what is the zero of a polynomial? Suppose अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 4. ओके, और इसमें x की जगह पर हमने कोई वैल्यू रखी जिससे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए. तो सपोज़ अगर हमने इसमें x इक्वल टू -1 रखा, तो -1 रखने पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो हमारी 0 आ गई. ओके, इसी तरीके से कोई और वैल्यू हमने रखी. सपोज़ हमने इसमें x इज इक्वल टू 4 रखा और पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी 0 हो गई.
तो ऐसी x की वैल्यूज़ जिसको पॉलिनोमियल में अगर हम पुट करें, x की वो वैल्यूज़ जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, ऐसी x की वैल्यूज़ उस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ कहलाती हैं. इट मीन्स -1 and 4 are the zeros of the polynomial because when we put x equal to -1 and x equal to 4 in the given polynomial, we get the value of the polynomial as 0. Okay? नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल हमको दे दी जाए और उसके हम कुछ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, x को हमने -1 वैल्यू दी तो उसकी वैल्यू 0 आई पॉलिनोमियल की, x को हमने 4 वैल्यू दी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, x को हमने 1 वैल्यू दी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी -6 आ गई. तो x को कुछ वैल्यू देकर पॉलिनोमियल की हम कुछ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और उन वैल्यूज़ के बेस पर हम पॉलिनोमियल का एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, सो ये ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ किया है, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यूज़ रख कर कुछ पॉइंट्स हमको मिले, उन पॉइंट्स को हमने जब ग्राफ पे प्लॉट किया तो हमें इस तरीके का एक शेप मिला. दिस इज़ द कर्व ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, सो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल टू द ग्राफ के साथ में ये पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप ये है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल आपका x है, ओके, इफ़ x इज़ वेरिएबल ऑफ एनी पॉलिनोमियल एंड यू पुट few values to x and you get some values of polynomial also and you plot all those values on the graph paper and you get a curve. So this curve, intersection point of this curve with x-axis, intersection point of this curve with x-axis are the zeros of the polynomial. Okay, intersection point, ये आप देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल का ग्राफ जा रहा है, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है. ओके ओके क्लास, और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी जो जा रही है, दिस इज़ दी एक्स एक्सिस इज़ गोइंग ऑन. ओके, और ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ग्राफ के और एक्स एक्सिस के आपस में. तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? यही हमारी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कहलाते हैं. ओके ओके क्लास, सो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द ग्राफ? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ एनी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल विद x एक्सेस. जितनी जगह पर ये ग्राफ x एक्सेस को कट करेगा उतने ही ज़ीरोज़ इस पॉलिनोमियल के होंगे. ओके, so move further. How to find out number of zeros? By observing the graph of any polynomial. अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको दे दिया जाए तो आप उसके ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज़ आपको एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से. ओके, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और इसमें आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है ग्राफ का और एक्स एक्सिस का, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है. ठीक है, इसके अलावा इस वाले ग्राफ में देखिए, इसमें भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ के साथ में और एक्स एक्सिस के साथ में एक ये है और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है. तो इस केस में आपको कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले? जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे. अगर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ में तो उतने ही आपके ज़ीरोज़ हो जाएंगे. ओके क्लास, सो दोनों केस में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे 2 होंगे. नाउ मूव फर्दर, मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ. एक ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है आपको सामने, यू कैन सी अ ग्राफ, सेकेंड ग्राफ इज़ बिफोर यू. सो नाउ हेयर काउंट द नंबर ऑफ intersection point.
here graph is just touching x-axis, so we are getting only one intersection point. How many intersection points are there? Only one. Here graph is also touching x-axis, so how many intersection points are there? Only one. So in this case number of zeros is equal to 1. Okay, this you already know, I am just recalling you. So how to find out number of zeros? By observing the graph of any polynomial. Further I take this graph, again next graph this. Okay, so how many intersection points are you are getting? There is no intersection point because the graph is here, ग्राफ यहाँ पर है और एक्स एक्सिस आपकी ये रही, तो आपको कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है, तो ज़ीरो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज़ीरो है, इसलिए आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी कितने मिलेंगे? कोई भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एक भी नहीं मिलेगा, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे हमारे ज़ीरो। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। इसके बाद हमने पढ़ा था रिलेशनशिप, हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया। इसके बाद था रिप्रेजेंटेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड दी कोफिशिएंट of a polynomial. So if you are given a polynomial x square minus 5x plus 6, suppose आपको एक polynomial दी गई है x square minus 5x plus 6, ओके, और इसके मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके आपने इसके फैक्टर भी निकाल लिए, और आप फैक्टर्स को फिर आप ज़ीरो के इक्वल कर देंगे तो आपको ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। ये सारा प्रोसेस हम लोग पहले भी कर चुके हैं और देख चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हमें इस तरीके से दो ज़ीरोज़ मिल गए हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के, तो क्या रिलेशनशिप होगा ज़ीरोज़ में और उसके कोफिशिएंट्स में? एक बार हम इस गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर भी कर लेते हैं। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जब हमने इसको कंपेयर किया है तो हमें a की वैल्यू मिल गई है 1, b की वैल्यू मिल गई है हमें 5 और c की वैल्यू हमको मिल गई है -6। ओके, नाउ फाइंड आउट द सम ऑफ द ज़ीरोज़। व्हाट आर द सम ऑफ द ज़ीरोज़? सम करेंगे, ये जो ज़ीरोज़ हमें मिल गए हैं 2 और ये 3, इसको जब हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 + 3 = 5। ओके, नाउ कोफिशिएंट ऑफ minus times coefficient of x and coefficient of x square is equal to -b upon a is equal to -5/1। b की वैल्यू हमने रख दी है यहाँ से उठा के -5, और a की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के रखी है 1, तो माइनस और ये माइनस साइन मिलके हो जाएंगे प्लस का 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ कैलकुलेट किया है, और ये जो कैलकुलेट किया है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू हमारी 5 आ रही है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूज़न निकाला है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दिस इज़ द formula that we have to remember whenever we solve the problems. Okay, now if we take out the product of zeros, if we calculate product of zeros, 2 × 3 = 6, and simultaneously we calculate constant term upon coefficient of x square, so here we are watching that we are getting the same values. Product of zeros यानी कि zeros को जब multiply किया तब भी हमको 6 मिला, और जब हमने कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि c अपॉन a को कैलकुलेट किया उस समय भी हमको 6 मिलता है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूज़न निकालेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा किसके बराबर होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इट मीन्स हमें यहाँ पर दो फार्मूले मिल रहे हैं। कौन से हैं वो दो फार्मूले? एक है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर,
और दूसरा फॉर्मूला है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। ओके, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स फर्दर क्लास। अभी तक हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़, representation between zeros and coefficient of polynomial. So what is our today's topic? Our today's topic is find a polynomial, quadratic polynomial, if sum and zeros are known. तो अगर हमें सम और ज़ीरोज़ दिए हों तब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, ये आज हम यहाँ पर सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज़ टॉपिक, find a quadratic polynomial if sum and product of zeros are given. Okay, so let us take a question. Write a quadratic polynomial if sum and product of zeros are 4 and 1. So here we are given sum and product of zeros. sum भी पता है और product भी पता है zeros का, और वो कितना है हमारा 4 और 1. So let us write quadratic polynomial is equal to x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. So this is the formula to find out the quadratic polynomial. quadratic polynomial निकालने का ये फॉर्मूला है अगर हमें क्या पता हो, सम ऑफ ज़ीरोज़ पता हो और अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता हो, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास में सम भी है 4 और हमारे पास में प्रोडक्ट भी है 1। तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़ और हमें जो हमारी रिक्वायर्ड आंसर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमें मिल जाएगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह पर हम रखेंगे 1 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की जगह पर हम रख देंगे प्लस का 1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर। आई होप दैट दिस एग्जाम्पल वुड बी क्लियर टू यू। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड। राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर रूट टू एंड 1/3। अब हमें सम दिया है, सम पता है हमें यहाँ पर कितना √2 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमको दिया हुआ है 1/3। तो हम अगेन इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इसमें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, इस √2 को हम पुट कर देंगे। इस √2 को हम सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह पर पुट कर देंगे और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की जगह पर हम रखेंगे 1/3। तो हमें जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो मिल जाएगी। सो लेट अस राइट सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 1/3। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। सो दिस इज अवर required answer. Okay, I hope that this example would be clear to you. So let us move towards the few more examples. So इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल। इफ ज़ीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -9 and 2 फाइंड द पॉलिनोमियल। अब ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको हर समय सम और ज़ीरोज़ डायरेक्ट दे दिया जाए। यहाँ पर आपको सम भी नहीं पता है, यहाँ पर हमें सम भी नहीं मालूम है और प्रोडक्ट भी नहीं पता है।
ना तो हमें यहाँ पर सम पता है ज़ीरोज़ का और ना ही हमें यहाँ पर प्रोडक्ट पता है। हमें क्या चीज़ पता है, हमें दो ज़ीरोज़ पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ हैं, एक है -9 और दूसरा है 2। ओके, वी नो ओनली 2 zeros of the polynomial. So first of all we have to find out the sum and then we find out the product and then we put the value in the given formula. So what is the sum of zeros? -9 और 2 को हम sum करेंगे यहाँ पर. So -9 plus 2 it will give you -7. Then we find out the product of the zeros. Product of zeros is equal to -9 into 2. -9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -18 मिलेगा. नाउ व्हाट वाज द फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. तो अब इस फॉर्मूला में हम ये सारी वैल्यूज़ रख देंगे. सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह पर रख देंगे -7 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की जगह पर रख देंगे -18. ओके, सो x² माइनस -7x माइनस 18. सो नेक्स्ट स्टेप में माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे +7 और ये होगा हमारा -18. सो अवर आंसर विल बी x² plus 7x minus 18. सो टिल नाउ वी हैव लर्न दैट इफ सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन डायरेक्टली देन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. ओके, अगर आपको सम पता है और आपको प्रोडक्ट भी पता है तो हम डायरेक्ट ये जो हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में वैल्यू रख देंगे. लेकिन अगर हमको सम और प्रोडक्ट नहीं पता है तो सबसे पहले हम सम कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू हमको मिलेगी उसको हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी मिल जाएगी. ओके, I am moving towards the next slide. Okay class, so exercise 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इससे पहले हम लोग कर चुके थे. इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हम पहले ही लगा चुके हैं. आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स भी भेजे हैं, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर मुझे मिले हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के आंसर मुझे नहीं मिले हैं. तो जिन्होंने अभी तक आंसर मुझे सबमिट नहीं किए हैं तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर मुझको जल्दी से सबमिट कर दें. ठीक है, ओके. इसके अलावा आज हमने जो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है इसको समझ लिया है. तो अब सभी लोग जो ये सेकंड क्वेश्चन है इसको भी मुझे कंप्लीट करके सबमिट कर दें. अभी मैंने आपको सेकंड वाला पार्ट समझाया है और इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है ये आपको क्या दिया है, ये आपको दिया हुआ है सम. ये जो फर्स्ट नंबर आपको यहाँ पर दिया है ये दिया है सम और जो ये सेकंड नंबर आपको दिया है ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. ओके, तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे वाली स्लाइड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. तो उस फॉर्मूले में बस केवल आपको ये डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर देनी है और कैलकुलेशन करके आपका आंसर निकल आएगा. आई होप कि आज की क्लास में जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सब आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज भेजकर भी आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं. ओके, सो आई होप दैट टुडेज सेशन would be clear to you, all the examples would be clear to you. If you have any problem you can ask in live class or you can message me directly to WhatsApp number or you can call me anytime to resolve your problem. Okay, so let us meet in next live class. आज तक हमने क्या पढ़ लिया है, आज तक हमने
ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं हमारे। आज हमने पढ़ाया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड जीरोज आर नोन। नेक्स्ट टर्न पे हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ ए पॉलिनोमियल। जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। ओके क्लास, फाइन, थैंक यू। So if you have any problem, please contact me.